Lecture 12, HRM in Small Business. कंटेंट फॉर द कोर्स। ये सभी कंटेंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले अपनी वीडियोस में। व्हाट दिस कोर्स वुड इंक्लूड। इस कोर्स में आपको 20 वीडियो लेसन्स है और हर वीडियो लेसन के साथ एक आपको केस स्टडी भी दी गई है जिससे आप और अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाएंगे। For session 12. In this session, we will discuss about importance of HRM, human resource development, industrial relation pricing, labor laws, and pollution control laws. Introduction. Let's discuss about this. As we all know that people are the real assets of an organization. If treated well, they can take organization to the commanding heights. Could be 4 or even 10. Organizations are generally driven by a set of predetermined goals. These goals have no meaning unless people understand the underlying philosophy, translate them into concrete action plan, and put their heart while realizing the targets. Organizations thus depend on people for their survival and growth. It is similar way people need organizations. Discuss the importance of human resource management, that is HRM. First, at the enterprise level, A. Good human resource practices can help in attracting and retaining the best people in the organization. Planning alerts the company to the type of people it will need in the short, medium, and long run. B. It helps in training people for challenging roles, developing right attitudes towards the job and the company, promoting team spirit among employees, and developing loyalty and commitment through appropriate award schemes. Second importance is at the individual level. Effective management of human resource help employees. Thus, A. It promotes teamwork and team spirit among employees. B. It offers excellent growth opportunities to people who have the potential to rise. C. It allows people to work with diligence and commitment. Third importance is at the society level. Society as a whole is the major beneficiary of human resource practices because employment opportunity multiplies, skills talents are put to best use. Companies that pay and treat people well always race ahead of others and deliver excellent results. Is importance of HRM at the national level. Effective use of human resource helps in exploitation of natural, physical, and financial resources in an effective way. People with right skills, proper attitude, and appropriate values help the nation to get ahead and compete with the best in the world, leading to best standard of living and better employment opportunities. Now let's discuss what is human resource management. Basically, human resource management is a process of planning, organizing, directing, and controlling of the procurement, development, and compensation, integration, and maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational, and societal objective can be achieved or accomplished. Now let's discuss what is human resource development. Human resource development is a positive concept in human resource management. It is based on the belief that an investment in human being is necessary and will inevitably bring in sustainable benefits to the organization in the long run.
It aims at the overall development of human resources in order to contribute to the well-being of the employees, organization, and society at large. According to Professor T.V. Rao, HRD is the process by which the employees of an organization are helped in a continuous and planned way to a. Acquire or sharpen capabilities required to perform various functions associated with their present or expected future roles. B. Develop their general capabilities as individuals and discover and exploit their own inner potential for their own and or organizational development purposes. C. Develop an organizational culture in which superior subordinate relationships, teamwork and collaboration among such units are strong and contribute to the professional well-being, motivation and pride of employees. Let's discuss the topic labor laws. Labor law seeks to regulate the relationship between an employers or a class of employers and their employees. The essence of this law is the widest in that it touches the lives of the far more people, indeed millions of men and women, as compared to any other branch of law, and this is the aspect that makes it the most fascinating of all branches of law, and the study of this subject is of enormous dimensions and of ever-changing facts. Let's discuss the new topic pollution control laws. In 1976, when the Indian Parliament passed the 42nd Amendment to its constitution, safeguarding the environment, it became the first country in the world to do so. According to the Environment Protection Act of 1986, environment is that which include the interrelationship which exists among and between water, air, and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms, and property. It has been amended many times since then. Basically, there are 6 pollution regulations. First, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1976 and its amendments. Second, the Water Prevention and Control of Pollution Cess Act 1974 and its amendments. Third, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 and its amendments. The Environment Prevention Act 1986 and amendments. It contains a National Environmental Tribunal Act of 1995, b. National Environmental Appellate Authority Act of 1997, fifth Hazardous Waste Management and Handling Rule July 1989, sixth the Public Liability Insurance Act 1991. ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ BSc फैशन डिजाइनिंग 6th सेमेस्टर ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। क्या आप ग्रुप में काम कर रहे हैं या व्यक्तिगत? नहीं, ये काम मैं मोस्टली इंडिविजुअल ही करती हाँ, पर कई बार मेरी मम्मा ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। एक महीने में कितनी इनकम हो जाती है? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਉਹਦੇ 500 ਜਾਂ 800 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ
डेकोरेशन का हुनर। क्या आपका परिवार इस इनकम पर डिपेंडेंट है या नहीं? नहीं, एक मोस्टली कम मैं अपने एक्सपेंसिस करनी ਜਾਂ खर्चे कट्टे नहीं करती हैं, तो कॉलेज के खर्चे अपने बस का किराया ਜਾਂ मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ, ये खर्चे करने वास्ते नहीं मोस्टली करती हूँ। ओके, इस प्रोफेशन में जुड़े रहने के लिए इस कॉलेज का क्या योगदान है? इस कॉलेज ने मुझे काफ़ी करेज दिता है, जब रिसोर्स दिते है टीचर्स में, तो मतलब मंथली जब बनवाते हैं स्वेटर्स वगैरह, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹਦਾ इंटरेस्ट बदल लग गया। आप फ्यूचर में इसी प्रोफेशन से जुड़े रहना चाहते हो? इस प्रोफेशन में एज अ पार्ट टाइम जॉब भी देखा, पर अगे जाके मैं जब होर चीज़ा ट्राई करना चाहती हाँ, पर इनू मैं एज नाल लैके ही चलांगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम जशवीर है। मैं दशवीश गर्ल्स कॉलेज चकला बख्श मुकेरिया में BA सेकेंड ईयर फाइन आर्ट्स की छात्रा हूँ। क्या आप ग्रुप में काम कर रही हैं व्यक्तिगत? वैसे तो अभी मैं इंडिविजुअली काम कर रही हूँ। अगर मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है या कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो मैं ग्रुप में भी काम करती हूँ। एज ए मेरे फ्रेंड्स भी हैं, फ्रेंड सर्कल है कॉलेज में, तो मैं उनके साथ में मिलकर काम करती हूँ। जी, एक महीने में कितनी इनकम हो जाती है आपकी? वैसे तो अभी इतनी मतलब नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर जब हम पूरे ईयरली काम करते हैं हमारे कॉलेज में, जब एनुअल एग्जीबिशंस होती हैं और दिवाली कम सेल होती है, तो उसमें हम थोड़ा बल्कि अपना पूरा जो आर्टवर्क है उसे रख कर, तो जब वो सेल हो जाता है तो हमारे इकट्ठा ही वो इनकम हो जाती है। क्या आपका परिवार इस इनकम पर डिपेंडेंट है या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट ही किया है, क्योंकि मैं स्टडी के साथ ही कर रही हूँ। ओके, इस प्रोफेशन में जुड़े रहने के लिए इस कॉलेज का क्या योगदान है? इस कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे न्यूली एडमिशन लिया था तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे फाइन आर्ट्स में पेंटिंग्स के अलावा मतलब और भी आर्ट वर्क हमें मैम करवाते हैं। जैसे हम नेट पे देखते रहते हैं कोई डिज़ाइंस वगैरह या आर्ट वर्क, तो हम नेक्स्ट डे मैम को बताते हैं और मैम को हमें चीज़ सिखाते हैं, तो इससे काफ़ी लोगों में फ़ायदा होता है। ओके, आप फ्यूचर में इसी प्रोफेशन से जुड़े रहना चाहते हो? हाँ, मैं इसी से जुड़े रहना चाहती हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मैं जैसे मैंने ये पेंटिंग्स की हुई हैं, स्टोन पेंटिंग्स की हुई हैं, और हम जो पॉट्स होते हैं उनको भी पेंट करते हैं, और काफ़ी मैंने ऐसे पेंटिंग्स भी बनाना स्टार्ट की हैं। तो अभी मैं इसे स्टडी के साथ कर रही हूँ, पर इन फ्यूचर मैं इसे बड़ा करूँगी, बड़े पेंटिंग्स बनाऊँगी। अभी तो मैं छोटी बना रही हूँ, तो जब मैं बड़ी पेंटिंग्स बनाऊँगी उस टाइम मेरे पास टाइम भी ज़्यादा होगा, और फिर इससे मैं जुड़ा रहना चाहूँगी। आप इस प्रोफेशन को फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए क्या सोच रहे हैं? मैंने अभी तक जब मेरी स्टडी खत्म हो जाएगी तो मैं इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे या ऑर्डर्स आएंगे तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल के बनाए रखूँगी, उनमें उनसे कॉन्टैक्ट रखूँगी और शेयर करके हम ग्रुप में काम करेंगे इससे, और साथ में रहने से अच्छा वो हो जाता है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम जसमीत सैनी है। मैं दशमेश गर्ल्स कॉलेज चकला बख्श मुकेरिया में BA फाइन आर्ट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैं क्राफ्टिंग और पेंटिंग के साथ साथ वेब डेवलपर हूँ। जसमीत, क्या आप ग्रुप में काम कर रहे हैं या व्यक्तिगत? नहीं, मैं व्यक्तिगत काम कर रही हूँ। एक महीने में कितनी इनकम हो जाती है? इनकम एक महीने में तो नहीं, पर जैसे जैसे काम आता है, जैसे क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं, वो अपना काम मुझे देते हैं, तो उस हिसाब से पेमेंट मिल जाती है। जसमीत, आपको ये आइडिया कहाँ से आया?
ये आइडिया मुझे मेरे फाइन आर्ट्स के टीचर से ही आया था। हमारी क्लास चल रही थी तो नॉर्मल डिस्कशन के बीच में उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताया था। वो भी फाइन आर्ट्स का हिस्सा है, तो उसमें से मुझे आइडिया हुआ। और जब मुझे एग्ज़ाम्स के बाद हॉलीडेज़ आई तो मैंने तब लैंग्वेज PHP जावा इन सब की ट्रेनिंग ली, कोचिंग ली, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। क्या आपका परिवार इस इनकम पर डिपेंडेंट है या नहीं? जी नहीं, मेरा परिवार इस इनकम पर बिल्कुल डिपेंडेंट है। जसमीत, इस प्रोफेशन में जुड़े रहने के लिए इस कॉलेज का क्या योगदान है? इस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स में से रिज्यूम बनवाते हैं, कैलेंडर्स प्रिंट आउट करवाते हैं और हमारे प्रिंसिपल मैम बहुत मोटिवेट करते हैं काम करके। आप फ्यूचर में इसी प्रोफेशन से जुड़े रहना चाहते हो? जी हाँ, मैं इस प्रोफेशन को कंटिन्यू रखूँ। जसमीत, आपको मनी कहाँ से आती है? मुझे मनी जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करते हैं, वो मेरा काम देखते हैं और उनको अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे अप्रोच करते हैं और अपना काम करते हैं। आपने इस प्रोफेशन को फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए क्या सोच रखा है? मेरा एम ये है कि मैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अपना रिज्यूम भेजूँ, मैं उन्हें ज्वाइनिंग के लिए बोलूँ तो वो मेरे साथ कोलैब करके मुझे वर्क करें। जसमीत, क्या आप हमें कुछ बना के दिखा सकती हैं या आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हो? हाँ जी, मैंने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की है खुद। ये देखिए, ये मेरी वेबसाइट है। इसमें मैंने अपने गोल्स बताए हैं अच्छे से। ये हमारी सर्विसेज हैं जो स्टार्टर से लेके एडवांस तक जाती हैं और ये मेरी स्किल्स हैं जो मैंने सीखी हुई हैं। डिजिटल कोड और ये मैंने काम जो मैंने किए हैं जिससे मुझे पेमेंट मिली है मैं एज ए बिगनर। ये हमारी प्रोसेस है। जैसे हम स्टार्टिंग में पहले प्लानिंग करते हैं कि हम क्या प्रोजेक्ट है और उसको अच्छे से डिज़ाइन करते हैं और डेवलप करके अच्छे से उसका वेबसाइट का एक्सेस जो है अपने क्लाइंट को देते हैं। और ये हमारे कुछ लिंक्स हैं और कॉपीराइट भी है हमारे पास। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रिया है। मैं दशमेश गर्ल्स कॉलेज मुकेरिया में भी सेकेंड ईयर की फाइन आर्ट की छात्रा हूँ। मैं पेंटिंग के साथ साथ क्राफ्ट वर्क भी करती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पेंटिंग और कुछ क्राफ्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। रिया, क्या आप ग्रुप में काम कर रही हो या इंडिविजुअल? मैं इंडिविजुअली काम करती हूँ, पर कई बार जब मेरे पास काम ज़्यादा आ जाता है तो मैं अपने फ्रेंड्स की भी सहायता ले लेती हूँ। एक महीने में कितनी इनकम हो जाती है? एक महीने में तो नहीं, हमारे कॉलेज में एग्जीबिशंस लगती हैं तो उसी में हम अपना काम जो है वो सेल करते हैं और हमने बाहर गिफ्ट शॉप्स वगैरह पे भी अपना काम जो है वो सेल करते हैं। रिया, आपको ये आइडिया कहाँ से आया? जब मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। हमारे फाइन आर्ट के टीचर ने हमें ये सब सिखाया है और अगर हमें कुछ पता ना लगे तो हम मैम से सहायता ले लेते हैं। क्या आपका परिवार इस इनकम पर डिपेंडेंट है या नहीं? नहीं। इस प्रोफेशन में जुड़े रहने के लिए इस कॉलेज का क्या योगदान है? मेरे इस प्रोफेशन में जुड़े रहने के लिए मेरे कॉलेज का बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान है। हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं और जो हमारे फाइन आर्ट के मैम हैं वो हमारे कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स करवाते ही रहते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो अपना टैलेंट दिखाते हैं और 3 या 4 बार में साल में जो है वो एग्जीबिशंस लगती हैं जिसमें हमारा काम जो है वो सेल हो जाता है। आप फ्यूचर में इसी प्रोफेशन से जुड़े रहना चाहते हो? हाँ जी, मैं ये मेरा पैशन भी है और मेरा एक सब्जेक्ट भी है तो मैं इसे कभी भी छोड़ूंगी नहीं। मैं खुद भी सीखूंगी और बाकियों को भी जो इसमें इंटरेस्टेड है उनको भी सिखाऊंगी। आपने इस प्रोफेशन को फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए क्या सोच रखा है? मैं सोशल मीडिया के ज़रिए जो है अपना काम भी सेल करूँगी और बाकी अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ भी इस काम को और बढ़ाना जरूरी समझूंगी और बाकियों को भी सिखाऊंगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शीतल कौर है। मैं BSc फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हाँ। अच्छा शीतल कौर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੌਬੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 50% ਹੀ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 50% ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ
बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, इस प्रोफैशन को फ्यूचर में अगे लेके जाओगे? हाँ जी, इस प्रोफैशन को मैं फ्यूचर में अगे लेके जावांगी क्योंकि इसको करके मैं बड़ी खुशी मिलती है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं नमस्ते, मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैं दशमेश गर्ल्स कॉलेज चैकला बख्श मुकेरियां ਦੀ BA फर्स्ट ईयर ਦੀ स्टूडेंट हाँ ਤੇ मैं स्टडी ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? मेरी मदर स्टिचिंग करते हैं तो मैंने काम करने का आइडिया उन्होंने तो ही आया। मतलब उन्होंने देख के मेरा इंटरेस्ट रखना स्टिचिंग। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ? इंडिविजुअल करती हूँ। ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? मैं अपना नीड्स ਨੂੰ पूरा कर सका इन्ना कमा लेंदी हूँ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? मैं पहला तो मैं घर ही स्टिचिंग करती सी, पर कॉलेज एडमिशन टाइम से मैं फैशन डिज़ाइनिंग रखी तो फिर मतलब टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, प्रिंसिपल मैम ने सपोर्ट किया। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? हाँ जी, मैं फ्यूचर से भी काम करती हूँ। मेरा नाम हरनूर कौर है। मैं BSc फैशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हाँ। ਅੱਛਾ ਹਰਨੂਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ये मेरी हॉबी है काम करना। टीचर एंड प्रिंसिपल मैम ने काफ़ी मोटिवेट किया था काम करने के लिए। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ? ये काम मैं इंडिविजुअली ही करती हैं। ये नाल मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ जो मेरा ग्रुप विच है। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਹਾਡਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਦਾ ਹੈ? 60% ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 40% ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੌਬੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋਗੇ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ? हाँ जी, क्योंकि मेरा फ्री टाइम में इन्हीं इस वर्क को कंटिन्यू करती हूँ। एक पार्ट टाइम प्रोफेशन भी है मेरा। नमस्ते, मेरा नाम सिमरन है और मैं दशमेश गर्ल्स कॉलेज में BA विद म्यूज़िक की स्टूडेंट हूँ। आपको म्यूज़िक का आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले तो मुझे बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत शौक था। फिर मैंने अपने गुरुजी से सिंगिंग की शुरुआत की। उन्होंने मुझे दशमेश गर्ल्स कॉलेज के बारे में बताया और फाइनली जब मैं उस कॉलेज में पहुंची तो मुझे क्लासिकल सीखने का बहुत शौक था। बट मैं एज अ स्टूडेंट मतलब क्लासिकल से बहुत डरती थी। पर जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया तो मेरे टीचर्स ने, प्रिंसिपल मैम ने बहुत मोटिवेट किया और मुझे क्लासिकल की तालीम दी और उसमें मैंने जोनल इंटर जोनल में भी परफॉर्म किया। क्या आप ग्रुप में काम करते हैं या फिर इंडिविजुअल? मैं ग्रुप में भी काम करती हूँ बट मैं इंडिविजुअल में भी काम करती हूँ। अच्छा सिमरन, आपको इस काम की इनकम कहाँ से आती है? इनकम में जैसे हम कई बार प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग अपनी ऑफिशियल सॉन्ग्स करते हैं किसी कंपनी के साथ जुड़ के। जैसे कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने अपनी ऑफिशियल सॉन्ग्स निकाले, आप पीछे पोस्टर देख सकते हो। तो ऑफिशियल सॉन्ग्स जैसे कंपनी के साथ जुड़ के हम अपने ऑफिशियल ट्रैक्स करते हैं। मैं कवर सॉन्ग्स करती हूँ तो उसमें हमें ये फ़ायदा हो जाता है। और कभी कभी हम जैसे भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं तो उसमें हमें उस चीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। क्या आपकी फैमिली इस इनकम पर डिपेंडेंट है या नहीं? जी, मेरी फैमिली इस इनकम पर बिल्कुल डिपेंडेंट है। आपने अपने प्रोफेशन को फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए क्या सोच रखा है? सबसे पहले मैं एक अच्छी सिंगर बनना चाहती हूँ और मेरा जो मेन प्रोफेशन है मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। जो चीज़ मैंने अपने गुरुजनों से सीखी है वो चीज़ मैं आगे बच्चों को फर्दर सिखाना चाहूँगी और मैं एक अच्छी टीचर बनना चाहूँगी। और स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी हमारे प्रिंसिपल मैम को और अपने म्यूज़िक डिपार्टमेंट को जिन्होंने मुझे क्लासिकल की तालीम दी और जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं।